وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھی سے, اپنے نیوز اینکر سے, کہ خبر ڈیلیور کرنے کے لیے کیا کیا لوازمات ہیں. اس حوالے سے ہم لہجے کی بات کر رہے تھے. تو آصف صاحب, ایک نیوز اینکر ہے, ایک کمنٹیٹر ہوتا ہے, ایک آر جے ہوتا ہے, ڈی جے ہوتا ہے, یہ مختلف, ان سب نے بات ہی کرنی ہوتی ہے ناظرین کے ساتھ یا اپنے سامعین کے ساتھ. انہوں نے گفتگو ہی ایک طرح سے کرنی ہوتی ہے, انہیں بات سمجھانا ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ انداز اور لہجہ مختلف ہوتا ہے. ہمارے جو کمنٹری کرنے والے ہیں میچوں کی, عموماً ہم نے دیکھا ہے, یا اس کے علاوہ بھی مختلف پروگرامز کی, یا اسٹیج سیکٹری جو ہوتا ہے وہ بھی بات ہی کرتا ہے نا, لیکن ہر جگہ لہجہ مختلف ہوتا ہے. آپ کے خیال میں اگر آپ ایک نیوز کاسٹر ہیں, ایک بہت اچھے نیوز کاسٹر ہیں, آپ کو اچانک کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ میچ ہو رہا ہے تو ہمارا کمنٹیٹر نہیں آیا, آپ اس کی کمنٹری کر دیں, تو کیا یہ ہو سکے گا؟ یہاں پہ نا میں آپ کو ایک بڑی ایک دلچسپ سی بات بتاتا ہوں. جی. پی ٹی وی کا 20ویں سالگرہ تھی. جی. تو ہمارے 2 مرحوم بہت ہی اچھے لیجنڈ, جی, اداکار ننا اور اس کے ساتھ تھے معین اختر. جی. معین اختر پروگرام کے کمپیر تھے. جی. تو معین اختر نے سوال کیا کہ ننا صاحب, میں نے سنا ہے آپ خبریں پڑھنے والے تھے. ہاں بالکل, وہ آئے ایڈیشن دینے, خبریں پڑھنے کے لیے ایڈیشن دینے آئے تھے. تو وہ ننا صاحب نے بتایا کہ جی بالکل, وہاں پہ پروڈیوسر اس وقت مجھے کہنے لگے, ننا بھاگو ذرا, یہ خبریں پڑھ دو. جی. تو میں نے ان کو کہا جی میں خبریں پڑھ تو دوں گا, لیکن یقین کوئی نہیں کرے گا. کیونکہ ننا صاحب ایک کامیڈین بن چکے ہیں, ایک امیج بن جاتا ہے نا, امیج بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے جب نیوز اینکر کو آپ لے کے جائیں گے کمنٹری کرنے کے لیے, میچ کی کمنٹری خاص طور پر, وہ کبھی بھی نہیں کر پائے گا. اگر وہ کرے گا تو میرے خیال میں وہ اس کے معیار پہ پورا نہیں اتر پائے گا, کیونکہ اسے میچ کی ان ٹرمز کا, ان پوزیشنوں کا علم ہی نہیں ہوگا. نیوز اینکر نے ٹریننگ ہی اپنی نیوز کے حوالے سے لی ہے, انہیں لفظوں کو پڑھا ہے, اس نے خبر کو سمجھا ہے, خبر کو پریزنٹ کرنا سمجھا ہے, اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے, اپنے آپ کو کیسے کیمرہ فیس کرنا ہے, اس نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. اس نے میچ کی ٹرم جو ہے وہ نہیں سیکھی, اسے نہیں پتا کہ میچ کی ٹرم کیا ہے, فٹ بال کی کیا ہے, ہاکی کی کیا ہے. وہ جو لوگ کمنٹری کرتے ہیں کم از کم وہ کچھ عرصہ بیٹھ کے وہاں پہ سیکھتے ہیں, میدان میں بیٹھ کے سیکھتے ہیں, کمنٹیٹر روم میں بیٹھ کے وہاں کھلاڑیوں سے مل کے سیکھتے ہیں, ان کی ٹرمز لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. میچ میں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے. ہاں, یا اس میں تو بعض اوقات وہ اپنی طرف سے تبصرہ بھی, تبصرہ جب وہ اس کے ساتھ پھر آ جاتے ہیں پرانے لیجنڈ کھلاڑی, ان کو لیا جاتا ہے ساتھ تبصرہ کہ یہ جو ہوا ہے ابھی یہ کیا ہوا ہے, پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ. اچھا, ایک ہوتی ہے خبر, ایک ہوتی ہے رپورٹ. رپورٹ اور خبر میں ان کے پڑھنے میں کوئی تفریق ہے؟ جی بالکل فرق ہے, رپورٹ اور خبر کے پڑھنے میں بہت فرق ہے. آپ یعنی محسوس کرتے ہیں کہ رپورٹ پڑھنے کا اور انداز ہے؟ جی بالکل, انداز دونوں مختلف ہیں, دونوں ہی خبریں ہیں, بالکل دونوں ہی خبریں ہیں, لیکن انداز دونوں کے مختلف ہیں. خبر پڑھنا, خبر بتانا اور چیز ہے, رپورٹ پڑھ کے بتانا اور چیز ہے. رپورٹ میں لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے, ٹھیک, خبر پڑھ کے بتایا جاتا ہے, لوگوں کو رپورٹ میں سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ واقعہ ہوا ہے اور اس طرح سے ہوا ہے. اچھا, ہمارے کچھ ریڈیو پہ بھی اور ایف ایم ریڈیوز پہ اور ٹی وی چینلز بھی جو نجی چلے ہیں, خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں, ان پہ نا اب ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اردو خبروں کے ساتھ ساتھ وہ پنجابی میں بھی خبریں دینے شروع ہو گئے ہیں, انگلش میں بھی ہوتی ہیں, اور کئی چینلز ایسے ہیں جن کے پاس وہ 1 یا 2 نیوز کاسٹر ہیں, اردو میں بھی وہی پڑھتے ہیں, پنجابی میں بھی وہی پڑھتے ہیں, زیادہ تر تو الگ الگ ہوتے ہیں لیکن وہ اردو میں بھی. اچھا, ان کا ایک اور پرابلم جو میرے سامنے میں نے دیکھا ہے, وہ تو صرف اردو پڑھنے والوں میں بھی ہے کہ وہ خبریں اردو میں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا لہجہ, کیونکہ وہ پنجاب کے رہنے والے ہیں تو ان کا لہجہ پنجابی ہے. تو جب ایک لہجے کا آدمی دوسرے زبان میں خبریں پڑھے گا تو کیا وہ بہتر رسپانس آئے گا اس کا؟
यहाँ पे सबसे बड़ा जो डायरेक्टर न्यूज़ है, मेरा सवाल मुकम्मल ये होगा, इस तरह होगा कि क्या एक न्यूज़ एंकर को 2 ज़ुबानों में खबरें पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए। अगर उसका लहजा उर्दू है तो उसको उर्दू में ही पढ़नी चाहिए, अगर उसका लहजा पंजाबी है तो उसको पंजाबी में ही पढ़नी चाहिए। यहाँ पे मामला आ जाता है डायरेक्टर न्यूज़ का जी, वो उसको इतनी सेंस होती है जी, उसको पता होता है कि कौन बंदा किस तरह की न्यूज़ पढ़ सकता है। प्रोड्यूसर जो है उनको पता होता है कि कौन बंदा किस तरह की न्यूज़ पढ़ सकता है। सम टाइम कुछ मुल्क में ऐसे मामला होते हैं कि जिनके ऊपर प्रोड्यूसर जो हैं किसी एक एंकर को बुला के उससे 2-3 घंटे की ट्रांसमिशन करवाते हैं जी। वो सिर्फ उसी से करवाते हैं जिसका उनने मुकम्मल तौर पर एतमाद होता है ये बंदा। यहाँ पे बात आ जाती है कि 2 लहजे, जब 2 लहजों में हम तकसीम होते हैं वहां पे जाके हम एक लहजा भी नहीं, एक नई किस्म का लहजा हम पेश करते हैं। 2 कश्तियों का सवार हो जाता है। बिल्कुल, एक नया लहजा, ना वो उर्दू होता है ना वो पंजाबी होता है, एक नया लहजा हम पेश करते हैं वहां पे जाके और एक अजीब किस्म का इंप्रेशन मार्केट में देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से हम मुकम्मल तौर पर वहां पे फ्लॉप रहते हैं। और आसिफ, एक उर्दू बोलने वाला लहजा जब पंजाबी बोलेगा उसका उर्दू का लहजा खराब हो जाएगा। आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, तो आप अदाकार के तौर पे भी सामने आ सकते थे, मॉडल के तौर पे भी सामने आ सकते थे, आपने न्यूज़ एंकरिंग ही क्यों चुनी? इत्तफाक ऐसा हुआ कि मैं जब रेडियो पे प्रेजेंटर बना जी, तो प्रेजेंटर बनने के बाद मुझे वहाँ पे रेडियो में ही ऑफर हुई कि आप यार न्यूज़ भी पढ़ा करो। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो वहाँ मुझसे पहले पढ़ते थे मैंने उनसे थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया, मैंने फिर न्यूज़ शुरू कर दी। इस तरह से मैं न्यूज़ से रिलेटेड हो गया। अब न्यूज़ से रिलेटेड हुआ तो मैंने फिर टीवी पे जाने की कोशिश की कि मैं इसी फील्ड में जाऊँ। इसी फील्ड कोई भी बंदा अगर देखें, कोई डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन है, वो आर्थोपेडिक काम कभी नहीं कर सकता। अगर वो आर्थोपेडिक करेगा तो वो खराब करेगा सब। बिल्कुल, जो उसकी स्पेशलाइजेशन है वो उसी में। जब मुझे ये एक चीज का इल्म है कि मैं न्यूज में काम कर सकता हूँ तो मुझे न्यूज में जाना चाहिए। अगर मैं मॉडलिंग में काम कर सकता हूँ तो मुझे मॉडलिंग में जाना चाहिए। वैसे कभी ख्वाहिश हुई है कि आपको किसी ड्रामे में हीरो ले लिया जाए? नहीं, अभी तक तो नहीं, मेरे दिल में कभी ख्वाहिश ही नहीं पैदा हुई। अच्छा, ठीक हो गया। ये तो कि आपने यानी अपना जो कैरियर है वो इसी में ही रखना है। इसी में ही रखना है और इसी में ही रखूँगा। इसी में ही आप रखेंगे। अच्छा, ख़बरें पढ़ने के हवाले से आपसे बातें और भी बहुत सी करनी है हमने। एक मुख्तसर सी बात कि आपको कम से कम 15-20 साल तो हो गए हैं इस फील्ड में जी। कभी किसी से इश्क हुआ है? अच्छा, ये कैसा सवाल आपने पूछ लिया है, बड़ा ये है तो ज़ाती नौयत का, लेकिन अगर ज़ाती नौयत का असल में ना जिंदगी में अगर इश्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अगर किसी बंदे के अंदर इश्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या वो अपना इश्क हासिल कर पाया है, ये एक सवाल, ये अलग बात, ये एक अलग सवाल है। इश्क जिंदगी में होता है। अच्छा, और जिससे भी ये सवाल किया है ना ऑन कैमरा, वो एक सियासा जवाब दे देता है। मैं अब इस सवाल को ना दूसरी तरह से करूँ जी, आप लव मैरिज पसंद करते हैं या अरेंज मैरिज? मैं असल में अगर अपनी जाती राय तो ये कि अरेंज मैरिज है ना वो सबसे बेस्ट है। बेस्ट। मैंने जहां तक लव मैरिज के अंजाम देखे हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत भयानक निकले हैं, वो कोई अच्छे खासे निकले। लेकिन अरेंज मैरिज कहीं ना कहीं पे माँ बाप की इज्जत, अपनी इज्जत, कोई भी मामला कॉम्प्रोमाइज लड़का भी करता है, लड़की भी करती है, माँ बाप भी करवा देते हैं, लड़के करवा देते हैं, लड़की माँ बाप लड़की करवा देते हैं, घर बंधे रहते हैं, चलते रहते हैं। जब मैरिज का अंजाम जो है ना, जब किसी को जाके जिंदगी में तलखियां बहुत सारी आती हैं, ये इसका मतलब नहीं कि हमारी जिंदगी लव मैरिज में तलखियां आती हैं तो मतलब अरेंज मैरिज में आती, अरेंज भी आती है। लेकिन लव मैरिज में तलखियां जब आती हैं तो वहाँ ये सवाल पैदा है कि भाई आपने अपनी मर्जी की है। ठीक है, नहीं अब इसका मतलब जज्बाती नहीं है। हाँ। और खबरें पढ़ने वाले को जज्बाती होना भी नहीं चाहिए। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की अपने न्यूज़ एंकर मोहम्मद आसिफ से। आपने भी इनकी बातें सुनी, ख़बरें किस तरह आप तक पहुंचती हैं, ख़बरें पहुंचाने वाले को उसका अपना अंदर का मौसम जैसा भी हो, लेकिन उसने जो ज़ाहिर ख़बर है उसके मुताबिक अपना लहजा, अपने चेहरे के
तासुरात रखने होते हैं। ये एक मुश्किल फ़न है, इसे लोग आसान समझते हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल फ़न है। इस सिलसिले में हमने उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू और करना थी, लेकिन वक्त की किल्लत आड़े आ गई है। हमारा वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है, तो इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का मेयार है वो पूरे शहर में उस तरह का मेयार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर के कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। कुरकुरे अब 10 और 20 रुपए में, याद रहेगा ना? 10 और 20। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का मेयार है वो पूरे शहर में उस तरह का मेयार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर के कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। क्या आप जानते हैं गुजरांवाला की पहचान क्या है? गुज़िश्ता सदी की दास्तान सुनाता गिरनगर, अखाड़ों में बबरियां डालते हुए पहलवान, मजेदार और लजीज खाते, सनत का ना रुकने वाला पहिया, नामवर अदबी शख्सियात और राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, जो यहाँ के शहरियों की 80% ग्रॉसरी की जरूरियात पूरी कर रहा है। यही नहीं बल्कि बेकरी की दुनिया में भी यह नाम लज्जत और मयार की पहचान है, जो इंतहाई कम कीमत पर बेकरी की मसनूआत शहरियों को फराहम कर रहा है
اور شہریوں کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ رانا عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ رانا عمر گروپ آف سروسز۔ رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں۔ گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں۔ بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں۔ میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے، اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔